Sure. I just wanted to tell you that. But otherwise, it is okay, the situation, the other. Good morning, sir. Good morning, Narendra. Thank you. Hello. Okay, Sajid sir, good morning. Good morning, Naren. How are you? Yeah, I'm good, sir. How are you, sir? It's always good to see you. Huh? Yeah, nice to see, sir. Sir, we are just going to start, and I hope everything is set there. Yes, Did you, I'm sir? ready. I'm ready from. Yeah, okay. You want me to share the screen, Naren? Let me introduce, sir. Let me welcome, and then. Okay. Yeah. Okay. So once again, good morning, one and all. And we are really glad to have you all here today. We appreciate your presence during this pandemic. And let me welcome and introduce our guest and all the invited speakers on the program for today's session. So on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, our principal sir, Dr. G. Kishore, Regional Director, Sai LNCP Trivandrum, and on my personal behalf, would like to take this opportunity to welcome all the participants attending this program across the country. I would like to extend a special welcome to our esteemed speaker for the session, Mr. Sajid Yusufdar, for being with us. We would like to welcome you, sir. Thank you. Thank you, Naren. Now, I would like to take this opportunity to welcome our beloved principal, sir, Dr. G. Kishore, for being with us, because it is sir's initiative and all positive support we are running on the right path. Sir, we would like to welcome you. Now, I would like to welcome Mr. Sujit Panigiri. Sir, he is the coordinator for the program, and he is the one who is, from day one, he is with us and dealing with all the technical things, and he's guiding us. Sir, we would like to welcome you in the session. Now, I would like to welcome all the participants who are showing a lot of interest to attend our webinar, our classes, and making this towards a successful event. So let me introduce about our very esteemed, very experienced and eminent speaker for the session, Mr. Sajid Yusufdar. Participants, sir is working as a football coach in University of Kashmir, Srinagar. Sir is former head coach of senior Indian women's national football team, Indian youth, boys, and national league teams as well. Now, about academic qualification, sir has done graduation from University of Kashmir. Then sir has done bachelor degree in physical education from Punjabi University, Patiala. Sir has also done master degree from same Punjabi University. NIS in the 2003-2004. Sir has done APC license,
2006, AFC B license, 2009, AFC A license, 2011, and sir has done his AFC C license instructor course 2014. And let me take this opportunity to tell you about sir's playing career. Sir has represented state, national, senior national Santosh Trophy 3 times from the year 2019 to 2002 at Kerala, Mumbai and Manipur. Sir has represented under 19 for his state in 1992-93, captain State Football Federation Cup in 1998, and sir has participated in All India Mohan Kumar Mangalam football tournament held at Jabbar, Udaipur, Rajasthan, and many more tournaments. Coaching experience. So, sir is working as a coach and preparing and coaching teams for inter-department, inter-collegiate, inter-university, and from 2006. Imparting coaching to different college and school football teams in the Delhi, and coach of under 21 state football team as well. Now, sir is head coach of under 16 AIFA boys team 2012-14, head coach of under 16 boys national football team 2013, head coach of under 16 boys national team participated in Administrative Cup Chandigarh 2013-14, head coach of AIFA boys national team which participated in under 19 I-League 2013-14 held at Mumbai, and head coach of under 14 boys team as well. Sir has a lot of experience in coaching I-League as well. Technical director of Royal Washington Football Club, technical director for Lone Star Kashmir FC 2014-15, and technical director for Real Kashmir FC 2016. Sir has attended more than 20 seminar, conference, refresher courses across the world. So, and sir has been awarded with Parshuram Award by Jammu and Kashmir government for Best Coach of the Year 2014, and awarded with Person of the Year 2016 by Center Research Development Policy. So, ladies and gentlemen, it's a great privilege for us to have Mr. Sajid Yusufdar for taking this session. Sir, now I would like to over to you, please, and let us grace with your knowledge and experience. Thank you. Thank you, Naren, for such kind words. As always, you love to tell more about myself, but it's not. I have not done that much, but it is only little bit of efforts from my side. What I am trying to give back to my country, to my fellow colleagues like you. So thanks, Dr. G. Kishore as well, and thanks to Sujit as well for doing such a wonderful job. So I guess we are ready with the, we can go and share the screen and with the participants and try to finish it, because I have got one more session to attend with the All India Football Federation, because I am committed to them as well. Okay, Naren, is it okay? Yeah, sir, you can start, please. Go ahead. Okay. Thank you. Just use the mouse to go up and down. Yeah. Good morning, everyone. I guess by now you must have understood what community coaching is, or what is the role of the community coach. So we will quickly try to. Am I audible, Naren? Yes, please. absolutely. Okay. So we will try to go through the slides again. हम जल्दी से जल्दी और slide जो भी आपने अभी तक cover किया है उसको cover करने की कोशिश करेंगे. So community coach, basically for my side, we all are community coaches one way or the other, because every now and then we are related to this game, related with the sport one way or the other. हम हर कोई जो हम हैं sport से जुड़े हुए हैं, चाहे एक तरीके से या दूसरे तरीके से, and we have got a role to play to develop the game of or to develop the sports culture in our country.
So उसके लिए हमारे shoulders पे बहुत बड़ी responsibility है. We have got lot of responsibility on our shoulders. So उसके लिए we coaches, we physical education teachers need to understand the importance of sports in our country. So we'll be going through how we can develop an idea of concept, importance and scope of community sports coach. So just give me a second here. Okay, and we will try to understand the role and responsibility of community sport coach, understand the selective difference coaching styles. बहुत सारे different मतलब styles होते हैं coaches के, हर किसी coach का अपना style होता है when it comes to the coaching. To learn how to have positive impact on participants, because when we are dealing with the participants, हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कौन से participants होते हैं और हर participant के साथ हमें differently उनको डील करना पड़ता है. To understand do's and don'ts of a coach's behavior, ये हमारे लिए बहुत important है समझना कि कौन सी ऐसी चीजें हम as a coach, as a community coach हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें avoid करनी चाहिए. To understand the qualities of a good community coach, we will try to go through or highlight that as well. So we as a sports coach, we are on the mission, और हमारा जो mission है, that is we will help people participating in sports to work towards achieving their full potential, whether they are professional sports people, sports teams, community teams or school groups. So आज जब सुबह मैं I was going through this PPTs, जैसे मैंने आपको बोला, it's not only about the coaches, it's about us, it's about everyone, कि हम कैसे अपने स्पोर्ट्स को लेके, कैसे if I will talk about football, कैसे मैं फुटबॉल को लेकर अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. अगर मैं स्कूल में काम करता हूँ, कॉलेज में काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स दैट. उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है हु आर वी कोचिंग. क्या हम ग्रास रूट लेवल पे कोच करते हैं, क्या हम यूथ के लिए कोच करते हैं जिनको हम जूनियर्स बोलते हैं, या क्या हम प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ डील करते हैं जिनको हम अडल्ट या सीनियर लेवल कैटेगरीज के प्लेयर बोलते हैं. So types of coaching, again when it is grassroots level, it's always for the development. उसको हम बोलते हैं non competitive. हमें हमेशा grassroots level पे हमेशा development को लेके हम काम करते हैं. Is it community based program? फिर आता है competitive, elite, top, amateur, professionalism. So types of coaching हमेशा दो categories में define की गई होती हैं, एक non competitive community और grassroots को लेके, दूसरा competitive जिसमें elite, top level और या amateur या professional level categories आती हैं. So development phases in any individual and team sport, चाहे आप कोई भी sport ले लो या कोई भी, चाहे वो team game हो, चाहे वो individual game हो, उसके लिए different levels होते हैं. So सबसे पहले the first thing which is or from where the child is getting into the sport is where he is falling into the love of the game. जहां पर वो एक स्पोर्ट को लेके, एक गेम को लेके उसमें एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है, जब उसको उस गेम के बारे में वो उसको लगता है कि ये गेम मुझे सबसे प्यारी लगती है. If I will give you one example of mine, because I have also got kids back home, कि मैं जब भी घर में आता हूँ मैंने कुछ बॉलें वहां पे रखी हुई होती हैं, because I am a football coach, obviously मेरे घर में फुटबॉल्स रखी हुई होंगी. So sometimes I used to come, I used to see my daughters, playing with them. So that is, they are falling love into that game. So वो हमें देखना है कि अगर वो particular child है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो गेम के और जो उसका रुझान है, वो कैसे आप उसको डेवलप कर सकते हो, उसको कैसे आप वहां उसके लिए वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो. सो एक बारी once he is into the love of the game, then comes उसका जो सेकंड स्टेज होता है, फिर उसके जो स्किल्स या टेक्निक्स होते हैं उसको हम थोड़ा रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ द गेम. फिर उसके बाद once they are technically good enough, जहां पे वो थोड़ी बहुत टेक्निक्स या स्किल्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं, फिर उनका एक और स्टेज में वो चले जाते हैं जहां when if it is a team game, so उसमें हम उनको बोलते हैं कि how you can now play in a group, चाहे वो उसका पार्टनर हो, चाहे वो बाकी कुलीग्स हो उसके साथ या टीम मेंबर्स हो. फिर उसके बाद हम गेम के बारे में उनको नॉलेज देते हैं, लर्निंग टू प्ले द गेम, कि अब ओके नाउ
you know how to kick the ball, you know how to receive the ball, you know how to pass the ball. ठीक है, ये सारी कुछ चीजें आप लोगों में आ गई. Now we are giving them the more detailed information. हम उनको और detailed information देते हैं. So एक बार वो उस सांचे में डल गए. फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग टुवर्ड्स बेस्ट परफॉर्मेंस. फिर हम उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं जहां से वो अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर अपना जो करियर है उसको लाकर खड़ा करें. फिर उसको फिर आगे जाके और एनालाइज करके वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और वी आर ट्राइंग टू डिजाइनिंग बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर देम. फिर उसके बाद रिफाइनमेंट होता है और उनके उससे रिलेटेड जितने भी क्रिएटिविटी या इंडिविजुअल जो एबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स दैट कम इनटू प्ले. So scope community coaching beyond sports performance. Always we as a coaches, we as a physical education teachers need to understand, because why I am always talking about physical education teachers, because physical education teachers, they have a very important role to play, because they are the ones जो बच्चों के साथ बहुत early age से in touch होते हैं. So we need to understand, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी physical education teachers देखे हुए हैं. So अगर बच्चे अभी adopt नहीं हुए होते हैं, they are not adapted to the situations, still they are asking for the results. So we as a coaches, we as a physical education teachers need to understand that development comes first. पहले development आनी चाहिए, फिर जाके when they are good enough in performing their technique or tactical abilities or understanding of the game is there, फिर हम जाके थोड़ा result oriented उनके लिए बन सकते हैं. So multifaceted personality working with organizations, players on various aspects. कि हम यहाँ पे ये जो mentoring part है ये बहुत important है, because मैंने भी जब स्कूल से शुरू किया या आप में से जितने भी जो स्पोर्ट से रिलेटेड हैं जिन्होंने कोई ना कोई गेम खेली हुई होगी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि वो बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स थे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन आके बन सकते थे अपनी गेम को लेकर, बट ओनली बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर गाइडेंस they are lost. So eventually after 10th, after maybe 12th examination, once they are pass out from the schools, pass out from the higher secondaries, फिर उनको हम कहीं नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि उनकी मेंटरिंग कहीं पे अच्छे से नहीं हुई होती है from the physical education teachers or the coaches or the people who are influencing, who have the influence in their life. So ये mentoring part है, ये part जो है we need to understand कि ये कितना important है. So then the teaching skills, हम जो उनको सिखाना चाहते हैं क्या वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं. मेंटल ट्रेनिंग जो हमारी होनी चाहिए बच्चों के साथ. मैं नेशनल टीम्स में क्या करता था, what I used to do, whether it was under 14, under 16, under 17, even with the senior players, because हर कोई player, every individual has to go through the stress level. चाहे वो मैच का प्रेशर हो, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे बहुत सारे प्रेशर्स ऐसे होते हैं. So उसके लिए what I used to do, I used to sit with them, I used to discuss with them one-on-one sometimes. So उस वजह से I used to, उनको मैं उस फेज से निकालने की कोशिश करता था. Yes, physical training is very important because every game is a physical demanding game. उसको लेकर हमें knowledge होना चाहिए कि हम उनकी physical ability कैसे develop कर सकें. Leadership quality, जब भी हम कोई भी quality की बात करते हैं, leadership comes first. So we need to have a very good leadership quality as well. Trust building, improving athletes' performance, because athlete is the one who is trusting you कि आपके अंडर मैं हमेशा परफॉर्म करूंगा, आपके अंडर जो है मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. सो उसका वो ट्रस्ट कभी ब्रीच नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए. एंड एनकरेजिंग पॉजिटिव थिंकिंग, ऑलवेज ट्राई टू एनकरेज द प्लेयर्स. कभी उनको एक मतलब यस क्रिटिक्स आर समटाइम्स हेल्पफुल, but when it comes to the youth, when it comes to the grassroots level, always try to encourage them. Teamwork, resilience हो गया, how to overcome different situations, developing good work ethics हो गया, moral, respect and love for the game. So ये जो सारी qualities हैं, ये जो सारा जो है, this is actually related to the best performance when it comes to the coaching, community coaching. Additionally, the scope includes diplomacy. Sometimes we need to be diplomatic as well. Negotiations, facilitations, organization, problem solving, and motivation. So, importance of community coaching. Community coaching की importances क्या हैं? अगर आप थोड़ा अपने आप पे खुद एक नजर मारो, जहां से आप suppose
हम एक कम्युनिटी से निकले हुए हैं, एक एरिया से निकले हुए हैं, एक एरिया को बिलोंग किए हुए हैं, अगर आपको नजर डालो कि मैंने जब अपना स्पोर्ट्स करियर शुरू किया है, ऑब्वियसली जो हमारे वहां पे हमारे मोहल्ले में या हमारे एरिया में जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने किसी हद तक हमें एनकरेज किया होगा, नो यू हैव द पोटेंशियल, आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। फिर हम जाके देखते हैं जहां पे हम खेलते हैं, उस जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है उसको हम बेटर करने की कोशिश करते हैं लोकली या किसी की हेल्प लेकर। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जिस ग्राउंड में मैं खेलता था, आई यूज्ड टू गो एंड अप्रोच द स्पोर्ट्स बॉडीज कि हमारे पास एक ग्राउंड है, इसको और हम बेटर कैसे बना सकते हैं, इसको मिट्टी डालने की जरूरत है, ड्रेसिंग रूम बनाने की जरूरत है, पानी की फैसिलिटी वहां पे होनी चाहिए। सो वी एज अ कम्युनिटी कोचेस we can help in develop the sports infrastructure in our locality as well. फिर आ गया स्पोर्ट्स टैलेंट डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स टैलेंट डेवलपमेंट अगेन हम लोकेलिटी की बात करें, अगर हमें लगता है कि हमारे एरिया में कोई ऐसा बच्चा है जो अच्छा टैलेंटेड है, उसको लेकर हम उसको राइट प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, अगर सेम अगेन मैं आपको अपने एरिया की बात बोलता हूं कि जिसने बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। वो क्यों प्रोड्यूस किए हैं? बिकॉज हमारे एरिया में वैसा एक स्पोर्ट्स कल्चर हमने डेवलप किया हुआ होता है, चाहे वो क्रिकेट को लेकर है, चाहे वो फुटबॉल को लेकर है, चाहे वो हमारा वाटर स्पोर्ट्स है। वी हैव दैट काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स कल्चर इन अवर एरिया, जहां से हम एनकरेज करते हैं हमारे प्लेयर्स को कि वो भी आके स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं। अगर वो अपना करियर ना भी बनाए, बट स्पोर्ट्स इज वन, स्पोर्ट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर देम टू बिल्ड देम फिजिकली, और उसको बोलते हैं ना कि जिस्म तंदुरुस्त और दिमाग चुस्त। सो स्पोर्ट्स को लेकर उनका जो फिजिक और मेंटल डेवलपमेंट भी हो सकता है, अगर वो उसको प्रोफेशनल करियर में ना उसको ले सकते हैं। रिडक्शन इन कम्युनिटी वायलेंस, यस ऑब्वियसली जब हम एक ऐसा कल्चर हमारे स्पोर्ट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे बच्चों को, हमारे जो एरिया से बिलोंग करते हुए स्पोर्ट्स पर्सन हो, डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस जो होती है ना पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी वायलेंस, जहाँ पे जो बाकी जो बच्चे होते हैं वो दूसरे सोशल इविल एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं। सो वी कैन हेल्प देम इन गेटिंग देमसेल्व्स आउट from those kind of social evil activities. Improving quality of life, जब वो सब चीजें उनसे हम सपोज उनसे दूर करेंगे, जो social evil things हैं उनसे हम उनको दूर रख सकते हैं through sports, so definitely उनकी जो life है वो improve हो सकती है। So who is a coach? Coach कौन है? Someone who teaches people how to improve a sport or a skill and to train and organize a sports team. So this is very important. So Naren, ये जो चीज है यहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे जब when I went through this, it is not only about a sport or a skill, it is about how you are training. आपकी जो ट्रेनिंग है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है बच्चों को, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, because as far as I am concerned, I am saying if your organization is good, your job is half done. So organization is very important when it comes to training the kids, when it comes to improve the performance of the players. So फिर इसको आगे जाके और हमने parts में divide किया हुआ होता है, because we want to have an active participation in our players. So provide opportunities for the active involvement of all participants. हर किसी participant, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी एज ग्रुप से बिलोंग करता हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो उनको अपॉर्चुनिटी दे दो। ये नहीं कि मैं फुटबॉल कोच हूं, मैं फुटबॉल में ही उनको एनकरेज करूंगा, बट इफ आई एम सीइंग कि कोई क्रिकेट का लड़का अच्छा खेलता है, सो आई वांट मी एज यू कैन से कम्युनिटी कोच, आई हैव द रिस्पांसिबिलिटी कि उसके लिए भी मैं कोई अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं। So gender, yes, ensure participants respect the opposite gender while playing contact. ये नहीं कि खाली suppose it happens in our Kashmir कि जहाँ पे कुछ साल पहले लड़कियों को नहीं एनकरेज किया जाता था खेलने के लिए, या बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज ऐसी हैं, या बहुत सारी इंडिया में ऐसी कम्युनिटीज हैं जो
अपोजिट जेंडर को एनकरेज नहीं करते स्पोर्ट्स में, बट नाउ द ट्रेंड हैज बीन चेंज फ्रॉम द लास्ट 10-15 years. इवन हमारे कश्मीर में भी अब ट्रेंड चेंज हो गया, गर्ल्स आर कमिंग इनटू द गेम. सो हमेशा उनको भी रेस्पेक्ट करो जब भी वो आपके पास आते हैं. Respect, interact with participants using gender sensitive non-discriminatory language. So this is again very important because I have been with the boys team, I have been with the men team, I have been with the girls team. So this is very important for us coaches, for us physical education teachers, कि जब भी हम girls के साथ या females के साथ बात करते हैं, because our words are like an arrow. एक बारी वो निकल गए फिर वो आप दोबारा वापस नहीं ला सकते. So we need to be extra careful when communicating, especially with the opposite gender. So athletic centric, we need to be athletic centric, identify alternate activities as appropriate to meet changes needs of participant. Fair and consistent, treat all participants equally irrespective of gender and disability, because अभी ये disability जो चीज है ये पिछले सालों में बहुत उभर के आई है, जहां हम कहते हैं कि नहीं, इनका भी उतना ही हक है स्पोर्ट्स को लेकर जितना हमारा हक बनता है. सो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they have different associations as well, federations are doing so many activities for them. So अगर ऐसे कोई आपके पास बच्चे आते हैं, उनको भी एक fair chance, they also deserve a fair chance and they also deserve the same respect जो हम बाकी जो है इंडिविजुअल्स को देते हैं. Am I clear till now, Narinder? Sir. Okay, thank you. So aspects of community coaching, when it comes to football, हम हमेशा बोलते हैं कि that we are working on TTPSM, जिसको हम बोलते हैं technical, tactical, physical, social और mental. So इन 5 aspects को लेकर हम बात करते हैं. When it comes to the other aspects as well, they are again as important as these 5 elements of the game. That is competition management. हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बच्चों को competitions में डालते हैं कि उस competition को लेकर हम कैसे उसको manage कर पाएं. So we need to understand each and every aspect of competitions. Then planning, how we are designing our planning, whether it is a short term planning, whether it is a long term planning. How we are developing the social relationship, हम social relationship स्पोर्ट्स को लेकर कैसे डेवलप करें. लेट इट बी विद द पेरेंट्स, लेट इट बी विद योर गार्जियंस, लेट इट बी विद द टीचर्स. सो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हैं. सो वी एज अ कोचेस नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेयर इज. मेडिकेयर को लेकर कितना इंपॉर्टेंट रोल स्पोर्ट्स में है, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है. अभी हमने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में अब इनिशिएटिव लिया है. We have put this as one of our topics, whether it is in our D license or C license, और इसको लेकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अब स्मॉल क्लिनिक्स भी हमने मैंडेटरी बनाए हैं कोचिंग के लिए, बिकॉज कोचेस आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट विद द प्लेयर्स. जब हम फील्ड में बच्चों के साथ काम करते हैं, especially when it is a body contact game or when it is a, you can say, a team game जहाँ पे opponents होते हैं, so definitely there will be injuries. So उन injuries को लेके हमें पता होना चाहिए, because अगर हमारे पास वहाँ पे medical staff ना हो या कोई ऐसा first aid हमारे पास available नहीं हो, so you are the one who needs to be taking care of those injuries to your players. So core responsibilities of a coach, फिर बहुत सारे ऐसे responsibilities as a coach के पास होती हैं. It's not only about one particular game or one particular sports. अगर हम एक ही sports की बात भी करते हैं तो उस sports के इर्द गिर्द भी बहुत सारी activities ऐसी हैं जो बहुत important है एक player को develop करने के लिए, चाहे वो उससे physical aspect को लेकर related हो, चाहे वो टेक्निक को लेकर रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल को लेकर रिलेटेड हो, या चाहे वो उसकी टैक्टिक्स को लेकर रिलेटेड हो. सो वी एज अ कोचेस नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां से मैं छोटी छोटी चीजें लाकर अपनी गेम में डालकर उसको ज्यादा यूजफुल बना सकता हूं अपने प्लेयर्स को लेकर. सो वी नीड टू नो वेरियस टेक्निक्स ऑफ स्पोर्ट, बिकॉज कोई स्पोर्ट में कोई ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो आपके एक मेन गेम में आपको हेल्प करेगी. सो यू कैन गेट दैट टेक्निक, यू कैन वो आप वहां से लेकर अपने स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं.
और हो सकता है उससे आपके बच्चे को फायदा मिले। प्रिपेयर नीड बेसिक ट्रेनिंग शेड्यूल्स, जो आपको जरूरत है वैसे ही आप अपने ट्रेनिंग शेड्यूल्स डिजाइन करो। कंडक्ट स्किल एंड फिटनेस ड्रिल्स, so yahan again we need to understand that there's a difference between a technique and a skill, so as per that only, kyunki technique is always isolation and skill is more of under pressure, so ye aapko samajhne ki zarurat hai ki agar bacche ki technique achhi nahi hai, definitely uske skill pe farak padega, agar uska skill अच्छा नहीं होता है तो तब जाके आपको आइसोलेशन में उसके साथ टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। सो यस, प्रिपेयरिंग क्वेश्चनियर असेसमेंट्स, ये अभी हमने अभी शुरू किया है कि वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रंस टू बिकम रॉबोट्स, वी वांट देम टू यूज देयर ब्रेन्स। सो उसके लिए हम अगर उनको बीच बीच में उनको थोड़ा उनका ब्रेन टेस्ट करने के लिए उनके लिए क्वेश्चनियर्स भी वगैरह सामने उनके सामने रख सकते हैं, सो दैट विल add more flavor to your, you can say, coaching method. Check participants' outfits and appropriate. Conduct appropriate activities. So ये जो चीज है, especially जब भी आप that your participants they are well equipped. अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, फुटबॉल गियर में मैंने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं कि अगर मैंने शिन पैड नहीं डाला है तो सर चलेगा, बट डोंट एनकरेज दैट थिंग। सो आपको कभी पता नहीं होता कि व्हेन देयर विल बी सम हार्ड टैकल, व्हेन देयर विल बी सम हार्ड चैलेंजेस एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ बैड इंपैक्ट ऑन अ शिन बोन एंड यू नो उसका करियर भी उससे खत्म हो सकता है। सो उनका जो गियर है, उनका जो आउटफिट है, मेक श्योर कि उन्होंने प्रॉपर गियर वगैरह पहना हुआ होता है। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्म अप, कितना जरूरी है वार्म अप, कैसे आप उस वार्म अप को डिजाइन करते हो अपने पार्टिसिपेंट के लिए, वो बहुत जरूरी है। विच उसके बाद फॉलोड बाय द लीड अप एक्टिविटीज, उसके बाद जो आपका सेशन है, इवन जो वार्म अप है दैट हैज टू बी रिलेटेड विद योर मेन सेशन। चेंज द डिलीवरी प्लान्स एज पर द सर्कमस्टेंसेस नीड्स। कभी कभी क्या होता है कि वी एज अ कोचेस वी नीड टू हैव वन बैकअप प्लान विद अस, तो उसके लिए मोस्टली हर जगह पे एस्ट्रोटर्फ वगैरह अवेलेबल नहीं होता, तो कभी आपने प्लान किया हुआ होता है, देन यू गो टू डिलीवर द यू कैन से योर कोचिंग सेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन वहां पे बारिश वगैरह होती है, तो उसको लेकर फिर then you have to take call whether to call off the session, whether to do something else. So उसके लिए आपको हमेशा एक ऐसे बैकअप प्लान के साथ तैयार रहना पड़ता है। या कभी कभी आपने 20 लड़कों के लिए प्लान डिजाइन किया होता है और ऑल ऑफ अ सडन आप जाके देखते हैं कि वहां पे खाली 15 बच्चे आते हैं या 10 बच्चे आते हैं। सो उनको लेकर फिर आप कैसे वो चीज करते हो, उसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना पड़ता है। सो यू नीड टू बी रेडी फॉर एनी एनी सर्कमस्टेंसेस व्हिच कम्स अक्रॉस। अप्लाई कोचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज एज पर द ट्रेनिंग प्लान। जो मैंने आपको बोला, जो भी आपके ट्रेनिंग प्लान में हो उसी को लेकर आप काम करिए बच्चों के साथ। ये नहीं कि आपने प्लान कुछ एक कोई और चीज करी है और ग्राउंड में जाके आप कोई और चीज उनको करा रहे हो। इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सेशन गोल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये बहुत एक ऐसी चीज है कि जो समझने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप सक्सेसफुल हो गए ये चीज ट्रांसफर करने में अपने प्लेयरों को कि आज हम ये चीज करने जा रहे हैं, बिलीव मी ये उनके लिए बहुत इजी होगा जब वो जाकर फिर फील्ड में उस चीज को परफॉर्म करेंगे। सो अगर आप उनको पहले वो एक्सप्लेन कर सकते हो कि आज हम ये सेशन करने जा रहे हैं, वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यूज अप्रोप्रिएट कूल डाउन एक्टिविटीज टू एंड द सेशन। अगेन जब भी आपका सेशन खत्म होता है, नो मैटर हाउ हॉट इट इज, नो मैटर हाउ कोल्ड इट इज, सो कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस कूल डाउन को लेकर और उस कूल डाउन की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए और वो भी आपको बच्चों को बताना चाहिए कि ये, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है वो जाते हैं ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वहां पे उनके साथ कोई कोच या कोई मेंटर अवेलेबल नहीं होता, सो वो दोबारा ऐसे ही चेंज करके वापस आ जाते हैं विदाउट डूइंग एनी कूल डाउन एक्टिविटीज एंड नेक्स्ट डे उनकी जो सारी बॉडी जो होती है स्टिफ होती है, दे आर नॉट in a position to attend the training session. So ये भी बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को बताएं how important cool down is. Conclude every session summarizing participants' progress.
हर कोई सेशन, मैं मानता हूं कि उस सेशन में अगर 1% भी आपके प्लेयरों में इंप्रूवमेंट आता है, सो वो एक बहुत अच्छा सेशन है आपके लिए. अगर वो 1% भी इंप्रूव नहीं होते हैं, सो मेक श्योर देन आपके सेशन में कोई प्रॉब्लम है. Then you need to go back, sit down, and have a reflection on your session, and then maybe next day, अगर आप उसको फिर उसको दोबारा करना चाहते हो, and अगर उसमें फिर उन पार्टिसिपेंट्स को लेकर थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है, so then yes, you are on a right path. Other responsibilities of a coach: ensure availability of required sports equipment. ये नहीं कि हम ग्राउंड में जाएंगे, सारा कुछ तैयार होगा, फिर बॉल ही नहीं होगा हमारे पास, तो दैट कम्स अगेन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सही नहीं थी. सेटअप इक्विपमेंट सेफली फॉर द प्लान्ड एक्टिविटी. सो मैं हमेशा अपने कोचेस को बोलता हूं, या जितने भी मेरे साथ काम किए हैं, मैं उनको बोलता हूं, वी एज अ कोचेस, हम वो बंदे होने चाहिए जो सबसे पहले ग्राउंड में आ जाएं और सबसे लास्ट ग्राउंड से निकले. सो जब हम सबसे पहले ग्राउंड में आएंगे, दैट गिव्स अस मोर टाइम to plan or to organize our setup. Make ground court marking for various sports. कभी कभी क्या होता है कि ओके मैंने वार्म अप के लिए यहाँ पे डिजाइन किया, फिर वार्म अप के बाद मेरा 3 versus 1 या 1 versus 1 या 4 वर्सेस, उसके लिए मेरा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, देन मे बी 6 aside. तो सारा कुछ मैं पहले ही सेटअप करता हूँ. मेंटेनेंस ऑफ प्ले स्पेस एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. फिर जब आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो खत्म वगैरह होता है, ट्रेनिंग सेशन वगैरह होता है, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कोच टू मेक श्योर कि वो अच्छे से उसको वापस अपनी जगह पे रखकर आए, और जो इक्विपमेंट है उसकी वो हमेशा कदर करे, बिकॉज इक्विपमेंट हम बार बार नहीं ला सकते. अगर हम एक फुटबॉल की भी बात करें, एक फुटबॉल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है जिससे 22 बंदे खेलते हैं. ये नहीं कि बॉल कहीं पे दूर चला गया कोई और ला देगा, नहीं. You as a community coaches, you as a physical education teachers, you as a football coaches or professional coaches, it's your responsibility to take care of or to maintain the play field for your participants. Not only for the participants, for yourself as well. Inform about an event. It is the responsibility of a coach to inform about an event. कोई भी ऐसी चीज जो है उसको लेकर आपको information, चाहे वो आपकी सुपीरियर्स हैं, चाहे वो आपका स्टाफ है, उसको देना बहुत जरूरी है. सीकिंग परमिशंस फॉर हेल्प एंड सपोर्ट. कभी कभी yes, we need support, we need some permissions from the authorities. उसको लेकर you have a responsibility to come forward and take the lead that I need to have these things for my players. I need this much of ground, I need the dressing room, I need the water for the players, या कोई भी ऐसी चीज जो आपको जरूरत है. It is the responsibility of a coach to arrange all those things for the participants. Protection of the children is always a paramount for a coach, and vulnerable adults from abuse. So कभी कभी आपकी ये responsibility भी बनती है कि अगर आपने देखा है कि आपके कोई सीनियर प्लेयर बुरी लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं छोटे बच्चों के साथ, उसको रोकना बहुत जरूरी है. यूज एज अप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स वोकैबुलरी. सो हम इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी. जब हम किसी एक स्पोर्ट्स की बात करें, अगर वो स्पोर्ट्स वोकैबुलरी अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके पार्टिसिपेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. कटेल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. कभी भी आप ऐसा बिहेवियर एनकरेज मत करो जिसकी वजह से उसका जो है असर बाकी प्लेयर्स पे पड़ेगा. बिकॉज हमारे कश्मीर में कहावत है, एक सेब हर का वो जो पेटी में अगर हम रखते हैं वो हर कोई सेब को खराब कर देगी. सो कभी भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो है उसको एनकरेज मत करो. Always undertake safety checks, explain safety protocols, basic first aid practices. ये सारी जो है 10th, 11th और 12th, these comes into the, you can say, the first aid and the safety of the players and well-being of the players. तो इसके बारे में knowledge देना या खुद को knowledge रखना बहुत जरूरी है. Goal setting and monitoring, we call it SMART goals. Be specific, know exactly what you are wanting to accomplish. तो हमें आपको हमेशा मतलब स्पेसिफिक गोल्स आपके सामने रखने चाहिए या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि आप क्या अचीव करने वाले हैं. बी ऑलवेज मेजरेबल. हाउ यू विल नो यू मेट योर गोल. सो हमेशा आपका जो ट्रेनिंग सेशन है उसको हमेशा एनालाइज करो.
अपने प्लेयरों को जो परफॉर्मेंस है उसको हमेशा एनालाइज करते रहिए. सो उसकी वजह से आपको बहुत हेल्प मिलेगा ये देखने के लिए whether you are going on a right track or not. Achievable, make sure your goal is not too far to reach but far enough to be challenging. Suppose again let me be a little bit more practical with you. अगर मैं एक प्रीमियर डिवीजन लीग खेलता हूं कश्मीर में जो यहाँ का हाई लेवल लीग है और उसमें मेरी टीम जो है इस साल 8वें नंबर पर आ गई. सो अगले साल मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं 5वें या 6ठे प्लेस पे आ जाऊं या मे बी 4थे प्लेस पे आ जाऊं. और अगर मैं ये सोचूं कि नेक्स्ट कि इस साल मैं 8वें स्टेज पे आया हूं 8वें रैंक पे आया हूं और नेक्स्ट साल में मैं 8वें से डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे आऊंगा, उसको हम बोलते हैं अनरियलिस्टिक गोल. Yes, it can happen sometimes. हो सकता है ये possible हो सकता है if you are good enough in getting the players or investing a good amount, maybe it is possible, but वो हमेशा possible नहीं होता. So हमेशा make realistic goals. Okay, इस बारी जो मेरा टीम है they were not good enough. एक साल में उनके साथ अच्छे से काम करके उनको और बेटर कर सकता हूँ. मे बी मेरा जो टारगेट होगा नेक्स्ट सीजन के लिए मैं पहले 5 में आना चाहूंगा. मेरी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो पहले 5 में आनी चाहिए. रिलेवेंट, लिंक द गोल टू समथिंग इंपॉर्टेंट टू यू, समथिंग दैट इंस्पायर्स यू. सो हमेशा ट्राई टू बी मोर चैलेंजिंग कि ये नहीं कि आज मैं 8वें पे आया अगले साल भी मैं 8वें पे आके आई एम सेटिस्फाइड. नो. सो अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहिए. सो ओके, इस साल मेरी जो परफॉर्मेंस है टीम की वो इस स्टेज पे आकर रुक गई. सो अगले साल मेरी जो परफॉर्मेंस है उससे और बेटर होनी चाहिए. उससे मैं जो मेरी इंप्रूवमेंट है मेरे बच्चों की, मेरे प्लेयर्स की, मेरी टीम की और बेटर होनी चाहिए. टाइमली, व्हेन डू यू वांट योर गोल टू मीट. अब यहाँ पे जो गोल्स होते हैं देयर आर शॉर्ट टर्म गोल्स, देयर आर लॉन्ग टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स में यस वो भी अचीवेबल होते हैं बट उसके लिए मैंने आपको बोला देन यू नीड टू make lot of investment, you need to get players from here and there. But अगर हम स्कूल में काम करते हैं it's not possible for us to get the best players from एक स्कूल से लाकर दूसरे स्कूल से लाकर हम अपनी स्कूल टीम में उनको डालें. So you need to be very realistic in setting your goals. So अगर आपने इस साल शुरू किया है अगले 4 साल में आप अपनी स्कूल टीम को कहां पे लाके खड़ा करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं. क्या 4 साल में आप वो इंटर स्कूल कैटेगरी के चैंपियन बनना चाहते हैं कि 4 साल में आप इंटर डिस्ट्रिक्ट जीतना चाहते हैं. सो वो एक जो गोल है वो एक जो टाइम पीरियड है वो आपको सेट करने की बहुत जरूरत है. और फिर जाके अपनी खुद की परफॉर्मेंस और अपने प्लेयरों की परफॉर्मेंस एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है ऑन मे बी ऑन डेली बेसिस, मे बी ऑन मंथली बेसिस, मे बी ऑन क्वार्टरली बेसिस or yearly basis. What knowledge and skills are required for a particular coach? That is, we as a coaches, if I am talking about football, so मेरे को पहले अपने फुटबॉल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में एक कोच को, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमारी जो बॉडी फंक्शंस हैं वो कैसे होती हैं, हमारा जो बिल्ड है बॉडी का वो कैसा होता है. बिकॉज कभी कभी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं मगर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या किसी एज के बाद वो ग्रो उनकी बॉडी नहीं करते ये. सो वो भी हमें समझने की जरूरत है कि उसकी जो एनाटॉमी है बॉडी की वो उसको लाकर कहाँ खड़ा करेगी इन द कमिंग ईयर्स. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी समझने की बहुत जरूरत है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं इनटू डिफरेंट सिचुएशंस. क्या उनको हेल्प करने की जरूरत है, क्या वो ज्यादा स्मार्ट है उन चीजों को पिकअप करने की. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, अगेन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट skill which a coach need to have or the knowledge which a coach need to have. Communication skill, how you are transferring your information to the players. So मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कोच के पास communication skill होना बहुत जरूरी है. He needs to be a very good communicator as well as he needs to be a very good listener.
कभी कभी मैंने बहुत सारे कोचेस ऐसे देखे हुए हैं जो बोलते हैं, मतलब जो उसको बोलते हैं हम वन वे ट्रैफिक, आप जो बोलोगे बस वही सही है। नहीं, sometimes it has to be other way around as well. You need to be a very good listener as well, क्योंकि क्या पता जो चीज आप ट्रांसफर कर रहे हो बच्चों को, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे। सो उसको लेकर अगर उनके कोई डाउट्स हैं, उसके लिए आपको एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, आपके पास वो लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसको लेकर फिर आप उनके वो डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर लर्निंग, ये सबको पता है ये कितना जरूरी है हर किसी इंसान के लिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे वो एंडोरेंस है, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है। सो इस चीज के बारे में नॉलेज होना is again very important for us. And principles of methods and training, हम कौन से ऐसे मेथड या कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं जहां पे हम अपने बच्चों के साथ काम करें, या जहां पे हम अपने स्टाफ को थोड़ा एजुकेट करें, जिससे हमारी जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उनको हम एनहांस कर सकें। There are definitely you can say different coaching styles. हर किसी कोच के पास अपना स्टाइल होता है। So कोई उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, या कोई उसको जिसको हम बोलते हैं कि जो बैलेंस करता है उसमें से, सो यू कैन से कमांड स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा बॉसी कैरेक्टर, व्हाटएवर ही इज सेइंग वही सही है। दूसरा होता है सबमिसिव, ओके। तीसरा होता है कोऑपरेटिव, वेयर ही इज ट्राइंग टू मेंटेन द बैलेंस। सो यस, वी एज अ कोचेस कभी कभी हमें नंबर 1 जो इसमें से है कमांड स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं बॉसी कैरेक्टर, बनना पड़ता है। कभी कभी हमें थोड़ा डेमोक्रेटिक अप्रोच भी लेना पड़ता है, या कभी कभी हमें इन सब चीजों को लेकर मिक्स भी करना पड़ता है। सो कब किस चीज को लेके आपको डिफरेंट कैप्स, उसको हम बोलते हैं डालना, कि कब आप बॉसी कैप डालोगे, कब आप डेमोक्रेटिक कैप डालोगे, कब आप उसको बैलेंस करने की, या कोऑपरेटिव स्टाइल जिसको हम बोलते हैं उसको अपने प्लेयरों के साथ अकॉर्डिंगली उसको यूज करो वो स्टाइल। So that is again you can say the quality of a coach, to use different styles at different with different age categories, and to use different style of coaching with different age groups. Follows a coaching process. ये आपको बहुत important है समझना। एक कोचिंग जब आप एक सेशन डिजाइन करते हो, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है। सो उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जब हम कोई चीज करते हैं उसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट। तो उस कोचिंग प्रोसेस में जब हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी थ्रू अवर विजुअल ऑब्जर्वेशंस, जो हम आंखों से देख पाए, या कभी कभी अगर हम विजुअल ऑब्जर्वेशंस को लेकर थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं, फिर मे बी वी कैन रिकॉर्ड अवर ट्रेनिंग सेशन, वी कैन रिकॉर्ड अवर मैच, फिर जाके हम उसको जाके दोबारा देख के वहां पे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। क्या ये टेक्निक को लेकर इस प्लेयर के पास प्रॉब्लम थी? क्या ये ग्रुप या टीम टैक्टिक्स को लेकर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी? क्या ये फिटनेस या मेंटल जो उनका एक्सर्शन हो रहा था उसको लेकर प्रॉब्लम हो रही थी? फिर जाके कौन से ऐसे प्लेयर या कौन सा ऐसा अपोनेंट प्लेयर जो हमारी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, देन किस ऐसे फील्ड के पार्ट में ये प्रॉब्लम हो रही थी? क्या हमारे डिफेंडिंग के टाइम पे हमारी टीम में प्रॉब्लम हो रही थी? क्या मिडफील्ड में ये प्रॉब्लम हो रही थी? या जब हम अटैक के लिए जाते थे वहां हम फिनिश अच्छे से नहीं कर पाते थे, तो कि वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी? When did the problem occur? While attacking or defending? What time of the game? कभी कभी फुटबॉल में ये देखा गया होता है कि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स या मोस्टली जो टीम्स जो गलतियां कमिट करते हैं वो 70 मिनट्स के बाद कमिट करते हैं, बिकॉज उस टाइम पे क्योंकि हमारी जो गेम है वो ज्यादा फिजिकल ओरिएंटेड गेम है, बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है। 70 मिनट्स तक हमारी बॉडी बहुत एग्जॉस्ट वगैरह हुई होती है। सो लास्ट 20 मिनट में बहुत सारी वहां पे टेक्निकल एरर्स होते हैं, टैक्टिकल एरर्स होते हैं, फिटनेस को लेकर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, माइंड को लेकर मतलब हम अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते।
सो वो देखना होता है क्या गेम के स्टार्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लास्ट वाले मिनट्स में हमारे लिए एक प्रॉब्लम्स आनी खड़ी हो जाती है हमारे टीम को लेकर। सो ये जो प्रोसेस है, ये कुछ की एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हु आर द प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड, वेयर डिड द प्रॉब्लम अकर एंड व्हेन डिड द प्रॉब्लम अकर। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनको समझने की बहुत जरूरत है हमारे लिए। फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट, फिर जाके अगर ये कोई चीज हमने फिर मतलब ये इन 5 को लेकर फिर हम इस चीज पे आ जाते हैं। अब हमने सारा कुछ देखा कि प्रॉब्लम्स कहां कहां पे आ जाते हैं। देन वी प्लान, वी ऑर्गेनाइज अ फील्ड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन, then we give the brief explanation to the players, we organize the players, we show the demonstration to them, then we start observing the training session. जब वो फिर हम ट्रेनिंग सेशन को लेके फिर हम उनको डालते हैं तो थोड़ा बहुत हम उनको फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। देन वी आर आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स। उसके बाद जब एक बारी आइडेंटिफाई हो गया मिस्टेक्स, वी आर स्टॉपिंग द सेशन, वी आर करेक्टिंग, एंड करेक्शन के बाद हम उस चीज को दोबारा रिहर्स करते हैं, दोबारा उसको रिपीट करते हैं। अगर वो चीज अच्छे से हो पाती है, ओके, अच्छा है हमारी टीम के लिए, अच्छा है हमारे उस ग्रुप के लिए जो वो प्रॉब्लम, जिनके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती थी। अगर नहीं, फिर हम उसको और जाके अगेन वी आर स्टॉपिंग द प्रैक्टिस, अगेन रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स, अगेन डूइंग द रिहर्सल एंड रेपिटेशन, और लास्ट में देन वी आर इवेल्युएटिंग आवर सेशन। सो ये भी एक कोचिंग प्रोसेस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकती है। मेक इट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर द पार्टिसिपेंट। मेक श्योर जो भी चीज आप पार्टिसिपेंट्स के साथ करो वो उसमें कोई ना कोई चीज सीख कर जाए। सो प्लानिंग एज पर नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। सो ऐसी एक प्लानिंग करो कि जो उस आपके ग्रुप को मदद करे वो चीज सीखने के लिए। प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर ईच सेशन। ये प्रिपेयरिंग इन एडवांस फॉर ईच सेशन, इट मींस प्लानिंग। यू नीड टू प्लान बिफोर डिलीवरिंग एनी ट्रेनिंग सेशन। बीइंग ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली, क्योंकि अगर आपने, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल फॉर द प्लेयर्स, अगर आप सही से ड्रेस्ड नहीं होंगे, आप प्लेयरों को नहीं बोल सकते आपने ये चीज क्यों नहीं पहनी है, वो चीज क्यों नहीं पहनी है। सो यू नीड टू सेट, यू नीड टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम। You need to dress in such a way that you are the example in front of them. Carrying a positive and energetic personality. Always try to be positive and encouraging towards the players. Providing constant encouragement. हमेशा encourage ही करते रहो rather than criticizing them. Being fair and non-judgmental. Emphasizing on enjoying the process and not the results. Again मैंने बोला जब हम ग्रास रूट को लेकर काम करते हैं हमेशा ये सोचो कि हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं, रिजल्ट इज सेकेंडरी फॉर अस। एंश्योर ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव समथिंग टू टेक बैक, चाहे वो एक पर्टिकुलर सेशन क्यों ना हो, मेक श्योर कि वो एक कोई ऐसी चीज उस ट्रेनिंग सेशन में सीखे जाए। हेल्प्स ओवरकम फेलियर्स, काइंडलेस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हमेशा उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए एनकरेज ही आप करते रहो। सो दीज आर 5 C's, which is communication, confidence, commitment, concentration, and control level, which will help you to deliver the session in a right manner. Okay, help prevent children from quitting sports. Yes, there are the occasions जब हमारे children drop out होते हैं sports से। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? वो ऐसी चीजें हैं कि जब उनको मजा नहीं आता है वहां पे वो गेम खेलने के लिए, इट्स नॉट फन एनीमोर, कि वहां पे भाई हम जाते हैं वहां पे मजा नहीं आता है खेलने के लिए, मैंने यार वहां जाना ही छोड़ दिया। दे डोंट प्ले एनफ। हाँ वहां गए, खेले, कोच ने 2 टीमें बनाई, मगर मेरे पास ज्यादा बॉल वगैरह आया ही नहीं, या कोच ज्यादा वहां पे बोलता ही रहा, तो प्लेइंग टाइम हमारे लिए बहुत कम आया। प्रेशर टू परफॉर्म, यार कोच हमेशा मेरे से परफॉर्मेंस मांगता है, उसकी वजह से मैं अंडर प्रेशर हो जाता हूँ और मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर मतलब मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। दे हैव लॉस्ट ओनरशिप ऑफ द एक्सपीरियंस, जो वो चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि आप उनको मगर वो चीज करने नहीं देते हो, सो इसी वजह से वो स्पोर्ट्स से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इट इज टू कॉम्पिटिटिव, कभी कभी आप मोर डिमांडिंग बन जाते हो प्लेयर्स के लिए, सो डोंट ट्राई टू बी मोर डिमांडिंग until and unless they are not that good कि जहां पे वो आपके एक्सपेक्टेशंस को लेकर खरे उतरे।
Too much emphasis is on winning. जैसे मैंने आपको बोला, especially when we are dealing with young kids, उस पर हमें उस टाइम पे हमेशा डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड मत होइए या विनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए. विद द टाइम यस इट इज इम्पोर्टेंट, जहां विनिंग भी इम्पोर्टेंट बन जाती है आपके लिए, मगर अगर लोअर एज ग्रुप की बात हो वहां पे हमेशा हमें रिजल्ट ओरिएंटेड को थोड़ा साइड में रख के डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा. नो लॉन्गर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट. सो यार मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैंने वहां जाना छोड़ दिया. वो दोबारा कैसे आएंगे वापस? जब हम उनको इक्वल प्लेइंग टाइम देंगे, जहां पर उनकी पार्शियलिटी नहीं होगी किसी प्लेयर को लेकर. मेक स्पोर्ट अ फन. जब हम उनके लिए स्पोर्ट दोबारा उनको लगेगा कि यार अब वहां पे मजा आ रहा है प्रैक्टिस के दौरान. बी क्रिएटिव इन योर ट्रेनिंग सेशंस. हर बार एक ही ट्रेनिंग सेशन बच्चों के साथ मत कीजिए. ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स. अगर आप एक ही चीज भी वो उस पर फोकस करना चाहते हैं, वो एक चीज को लेकर भी आप उसको बहुत सारे सांचे में डाल के, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप लेकर वो हमेशा थोड़ी मॉडिफाई करके बच्चों के साथ उस पर वो काम कर सकते हैं. इन्वॉल्व योर सेल्फ एथलीट्स इन द ट्रेनिंग सेशंस. अंडरस्टैंड what motivates your athletes. आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लेयरों को मोटिवेट करना कितना जरूरी है, और उसके लिए आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे वो प्लेयर मोटिवेट हो जाता है. कोई प्लेयर वर्ड से मोटिवेट हो जाता है, कोई प्लेयर टैप से मोटिवेट हो जाता है, कोई प्लेयर जो है रिवार्ड से मोटिवेट हो जाता है. सो हर किसी प्लेयर के लिए डिफरेंट ये हैं तरीके हैं उनको एनकरेज करने के लिए. सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं. अगर प्लेयर ड्रॉप आउट होते हैं उनको हम दोबारा एनकरेज कैसे करें स्पोर्ट्स में लाने के लिए. सो आपके साथ ये शायद पीपीटी शेयर होगा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स which can help you to get those children again, get those participants again into the sport. Yes, then there are do's and don'ts. Do's में क्या आता है? Do listen. जैसे मैंने आपको बोला, we as a coaches, we as a physical education teachers, we need to have a very good listening ability. उसके लिए हमें good listeners बनना बहुत जरूरी है. Do teach transferable skills. Do respect. Do make sessions fun. Do praise effort. Do get to know the children you coach. Do be a role model. Do ask questions and do plan. So ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपको बच्चे को अच्छे तरीके से कोच करने में. Now don't में क्या क्या आता है? Don't focus on a child's weakness. Don't yell at a child. Don't criticize. Don't lose your cool. Don't blame a child for making a mistake. Don't constantly tell children how to play and what to do. Don't copy what other coaches are doing. So ये जो लास्ट वाला ये है, इस पर मैं थोड़ा बहुत आपको बोलना चाहता हूँ. मैंने मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, देखा हुआ भी है कि we go and search on the internet कि यार ये सेशन बहुत अच्छा है, कल मैं जाके यही सेशन अपने बच्चों के साथ कराना चाहता हूँ, विदाउट नोइंग कि वो जो सेशन है, वो जो यूट्यूब पे वो सेशन है, वो किस टीम के लिए है, उसका एज ग्रुप क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है वो चीज करने के लिए. सो विदाउट नोइंग ऑल दोज फैक्टर्स वी आर ट्राइंग टू डू द सेम सेशन नेक्स्ट डे विद आवर ओन किड्स, जो उनसे बहुत टेक्निकली उतने साउंड नहीं होते, टेक्निकली इतने अवेयर नहीं होते, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उतनी अच्छी नहीं होती, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो वैसे ही वो सेशन करे. सो इसको लेकर हमेशा कोई ऐसी चीज कॉपी मत कीजिए जिसकी वजह से आपके वो प्लेयर उसको अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए. So 7 qualities of successful coach. A good coach can change the game. Yes, this is true. A great coach can change a life. Definitely. जो अच्छा कोच होता है डेफिनेटली उसके जो असर जो है वो हम मैच में देख सकते हैं कि उसने वो गेम को लाकर अपने प्लेयरों को लाकर कौन कौन सी ऐसी चेंजेस की हुई होती हैं. मगर जो ग्रेट कोच होता है परफॉर्मेंस के साथ साथ वो उस प्लेयर, वो उस टीम में जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं उसको इन्फ्लुएंस करके उनकी लाइफ चेंज कर सकता है. दे आर नॉट बॉसी, दे ग्रो विद देयर प्लेयर्स एवरी डे.
They never rely on past performance. They look ahead. ये नहीं कि मैंने कल क्या खेला या मेरी टीम ने कितना अच्छा खेला, वो हमेशा अपने प्लेयरों को आगे देखते हुए देखना पसंद करते हैं. They love struggles and challenges. Good coaches always love struggles and challenges. They are fearless. वो उनके जो डिसीजंस वगैरह होते हैं उनको लेने में वो कभी उनको फियर नहीं होता, कभी वो डरते नहीं अपने डिसीजंस लेने में. They love trying out new ideas. So जो उनके इनोवेशंस होते हैं, जो उनके खुद के आइडियाज होते हैं, वो कभी वो हमेशा चाहते हैं वो उन चीजों को एक्सपीरियंस करना. They look to keep good and close relationships with everyone, not only with the players, with their co-staff, with the management. कोई भी जो ऐसे लोग हैं जो उनके स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उनके साथ गुड रिलेशनशिप रखना बहुत जरूरी है. Good coaches, they have clear vision and ideas for the future. Good coaches, again, they are always honest and truthful in their actions. Mr. Sajid, there's a video before this slide. If you just want to play that, yeah, this one, just click on that. Okay. Yeah. Okay, let's see what we have got here. To the next slide. Okay, to summarize it up, a good community coach has the right knowledge, skills, and attitudes of handling sports performance as well as sports participants. जो एक अच्छा community coach होता है उसके लिए एक knowledge होना बहुत जरूरी है, और स्किल को लेके, एटीट्यूड को लेके कि प्लेयरों को कैसे हैंडल करें, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उनको वो कैसे हेल्प करे ताकि वो आगे जाके एक अच्छे स्पोर्ट्समैन साबित हो उनके स्कूल के लिए, उनके कॉलेज के लिए, मे बी उनके स्टेट के लिए या आगे जाके कंट्री के लिए. डेवलप्स द राइट ट्रेड्स, और प्लेयरों के लिए अच्छा चीज क्या है, उनको डेवलप वो कैसे कर सके, वो एक अच्छी निशानी मानी जाती है एक अच्छे गुड कम्युनिटी कोच की. कंटिन्यूअसली improves himself and sports participants. ये नहीं है कि हमेशा उसको अपने पार्टिसिपेंट्स को इम्प्रूव करना है, उसको उसके साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आप को भी वो इम्प्रूव करे. वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, उसकी कोचिंग जो टर्मिनोलॉजी है या कोचिंग जो मेथोडोलॉजी है या प्रिंसिपल्स ऑफ कोचिंग जो है उसको लेकर वो कैसे इम्प्रूव करे, बिकॉज देयर आर ऑलवेज यू कैन से अपग्रेडेशंस, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को ज्यादा नॉलेज लेना. जब वो खुद जाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, देन डेफिनेटली ही कैन ब्रिंग द चेंज इन द पार्टिसिपेंट्स एज वेल. फॉलो द डूज एंड डोंट्स, जो हमने अभी देखा कि कहाँ पे उनको जरूरी काम करना है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको उनको अवॉइड करना चाहिए. डू टेक केयर एंड कंपनसेट अबाउट पार्टिसिपेंट्स, हमेशा पार्टिसिपेंट्स को लेकर वो कितना कंसर्नड है वो उसको समझना बहुत जरूरी है. So this is from Dr. Usha S. Nair and Sujit Panigrahi, who had made this presentation a wonderful presentation, और जिसको मैं किसी हद तक डिलीवर करने में थोड़ा कामयाब हो गया आप तक पहुंचाने के लिए. So thank you very much participants, thank you very much Naren, Sujit. So if they have any kind of questions, because I have got one more session to attend, so thanks from my side. Yeah, thank you so much Sajid sir for a wonderful session. And yes, of course, there are few questions. So I'll quickly take first question. So Yeah. that is question is very relevant to the topic. Like एक participant है Sangeeta Agarwal. So the question is
कि बच्चों में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे वांट टू पार्टिसिपेट, बट उनमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है कि वो कंटिन्यू कर पाए। तो सर प्लीज some ideas or suggest. Yes, this is something very interesting, and we as a coaches need to understand, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है प्लेयरों में। जैसे अभी हमने देखा, स्लाइड में भी देखा, कितना चिल्ड्रंस ड्रॉप आउट क्यों होते हैं स्पोर्ट्स से। चिल्ड्रन ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे उनको मजा नहीं आता वो चीज करने के लिए। सो हमें पहले ये देखना है कि कहीं कोई कमी हमारे में तो नहीं है, हमारे कोचिंग मेथड में हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उसको अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर पाते या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। सो अगर वो चीज है, देन वी नीड टू एनालाइज आवर ओन परफॉर्मेंस एज वेल। So we as a coaches, we as a physical education teachers, we need to create, that kind of a atmosphere for the players, जहां पे उनको हमेशा मजा आए वो ट्रेनिंग करने के लिए। So fun has to be the paramount when you are delivering the session, or when you are dealing with the, you can say, grassroots kids. When it comes to the grassroots kids, grassroots is all about fun and enjoyment. So अगर हम वो चीज उनको नहीं दे पा रहे हैं, that means कहीं पे फिर हमारे में कमजोरी, हम वो एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट कर पा रहे अपने बच्चों के लिए। अगर वो चीज हम कर पा रहे हैं, सो डेफिनेटली दे विल बी मोर टू स्पोर्ट। डेफिनेटली उनका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा से अच्छे से डेवलप हो सकता है। या थैंक यू सो मच सर। नाउ बिफोर गोइंग टू सुजीत सर, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन हियर। सो दैट द क्वेश्चन इज लाइक, as a coach, how to handle different type of players or different type of children, like skill wise, fitness wise, and how to balance among them. Yeah. But नरेन, वही एज अ कोचेस आप में मेरे में, मतलब हमने बहुत सारे, मतलब जब हमारे पास ग्रुप्स होते हैं तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड होते हैं। सो डेफिनेटली जब उनकी टेक्निक सही होगी, उनकी जो स्किल है वो बाकी प्लेयर से बेहतर होगी। सो अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि उसको हम बोलते हैं देयर आर कोई अर्ली डेवलपर्स एंड लेट डेवलपर्स होते हैं। सो एक कोच में, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जो बेचारे कर पा रहे हैं आप खाली उन पे फोकस करो और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको आप इग्नोर करो। सो वी नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस। हो सकता है आप उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ ज्यादा टाइम आपको बिताना पड़ेगा। वी नीड टू गिव मोर फोकस, या ज्यादा से ज्यादा टाइम उनको देना पड़ेगा। और जो अच्छे से कर पा रहे हैं उनको हम दूसरा चैलेंजिंग टास्क में कैसे डाल दें ताकि वो उससे भी बेटर कर पा रहे। सो वी एज अ कोचेस, वी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, हमें ये समझने की जरूरत है कि हम उन 2 ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कैसे करें और कहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है और कहाँ पे ज्यादा चैलेंज डालने की जरूरत है। Right. Now, so yes. Suji sir, please, if you have questions. एक 2 क्वेश्चन है, मतलब कि जो कंफ्यूजन पहले भी सेशन में आया था, तो आई थॉट दैट क्वेश्चन विल कम अप। और अभी किसी ने पूछा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सबमिसिव कोचिंग स्टाइल और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सत्यव्रत चैटर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज आस्किंग कि सबमिसिव कोचिंग स्टाइल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सम एग्जांपल के साथ। That is one question. I'll tell you the other question. A lot of people had asked this question कि physical education और community coaching में essential difference क्या है। ये बहुत fundamental question है। Physical education जो physical education हम स्कूल में कराते हैं और community coaching में essential difference क्या है। Because the PE teacher actually basic ये confusion इसलिए आता है कि वो PE teacher स्कूल में पढ़ाते हैं और शाम को coaching कराते हैं, तो difference क्या है? दोनों में पार्टिसिपेशन के बाद पहले में आपका जो ये फिजिकल एजुकेशन जो है, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स उनके लिए खाली एक गेम अहमियत नहीं रखती, उनके लिए मतलब डिफरेंट जो वहां पे बैचेस होते हैं उनके लिए डिफरेंटली उनके साथ डील करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेट करना। बट हमारी अभी कोशिश है कि साई को लेकर कम से कम जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको हम अपनी गेम के रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड थोड़ा उनको और गाइड कर सके, थोड़ा उनको और एजुकेट कर सके। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आर द वंस जो बहुत अर्ली एज से बच्चों के साथ जुड़े हुए होते हैं और जहां पे वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, चाहे वो उनको टेक्निक को लेकर, चाहे वो उनको थोड़ा स्किल को लेकर उनके साथ काम कर सकते हैं बिफोर दे मूव इनटू द नेक्स्ट लेवल।
सो वो चीज हम अभी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ करना शुरू कर रहे हैं, जहां पे एक आइडिया उनको मिल जाए कि फुटबॉल को लेकर वो थोड़ा और जाके डीपली उनके साथ काम कैसे कर सके. यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स बिकॉज उनको बैलेंस करना पड़ता है बाकी गेम्स के साथ साथ, बट yes, we are trying to give them little bit more knowledge about the specific sport which is football. So अगर ऐसे ही बाकी गेम्स के भी जैसे उनके लिए कोर्सेज वगैरह होते हैं और उनको थोड़ी थोड़ी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी, so definitely वो थोड़ा और बेटर अपने बच्चों के साथ वहां पे फिजिकल एजुकेशन स्कूल में, फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल में अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं. और उसकी वजह से when their teams are competing at स्कूल लेवल और इंटर कॉलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, डेफिनेटली उनके जो टीम्स हैं, स्कूल टीम्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है. सो यस, फिर जाके जो मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के बगैर जिनको हम बोलते हैं आप प्रोफेशनल कोचेस, उनका मेन फोकस एक ही गेम को लेकर होता है. सो इसीलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और जो प्रोफेशनल कोचेस जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है. बट अगर हम इस चीज में कामयाब हो गए कि थोड़ा बहुत जहां पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हमारी प्रोफेशनल कोचेस की थोड़ी बहुत एट एन अर्ली स्टेज कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फिजिकल एजुकेशन टीचर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इन द एंटायर कंट्री. एक सबमिसिव कोचिंग स्टाइल का एप्लीकेशन, एन एग्जांपल वेयर दे कैन अप्लाई सबमिसिव कोचिंग स्टाइल. देखिए, हमेशा कोचिंग स्टाइल्स जो होते हैं, इसको मैं ऐसे आपको बताऊं कि कोई जो कोच होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो ही इज ट्राइंग टू बी अ बॉसी, कि जो मैंने बोला कि वही सही है, जिसको हम बोलते हैं कि द बॉसी कैरेक्टर, मोर ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल. ठीक है. दूसरा होता है कि जहां पर लेकर वो जो राय होती है ना, मैं उसकी भी सुनूं और इसकी भी सुनूं. ठीक है, डेमोक्रेटिक थोड़ा. ठीक है. तीसरा होता है कि जिसको बोलते हैं हम लिटिल बिट मगर नहीं, हाँ, कैजुअल हो गया कि नहीं यार, मैं ना बॉसी बनना चाहता हूं, मैं ना डेमोक्रेटिक बनना चाहता हूं, मैं बीच में रहना पसंद करता हूं. सो ये एक 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसको लेकर हमें जो वी एज अ कोचेस नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस टाइम पे कौन सा स्टाइल मेरी जो टीम है उसको सूट हो सकती है. So it is role. It is, you can say, more of, you can say, trying to be very obedient with the players. Okay. मगर उसमें भी एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि if you want to be very obedient, very casual with the players, फिर वो प्लेयर जाके आपके सर पे बैठेंगे. They will not listen to you. You know what you are trying to tell them or what you are trying to teach them. So you as a coaches need to maintain the balance. कब मुझे submissive स्टाइल में जाना है, कब मुझे autocratic स्टाइल में जाना है, कब मुझे casual स्टाइल में जाना है. So wearing the different caps at different times. एक और क्वेश्चन है which I think is relevant, जो हमने एड्रेस नहीं किया पूरे प्रेजेंटेशन में. So someone is asking what is the difference between जैसे मेरा कोचिंग सर्टिफिकेशन होता है, या तो मैं NIS में सर्टिफाइड हूँ या AIFF का सर्टिफाइड हूँ. आई एम टेकिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुटबॉल, बट इट कैन बी अप्लाइड टू अदर स्पोर्ट्स आल्सो. व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस सर्टिफिकेशंस एंड what is going to help a coach? Look, I will give you my own example. I have done my diploma from NS पटियाला. मैंने NS भी किया है, डिप्लोमा किया है, पटियाला से किया है. उसके बाद मैंने C भी किया है, B भी किया है, A भी किया है. So there are 2 different things which you as a coach need to understand. That is, जो NIS है, that is only helping you to get the job in a particular department, because sports ministry या जितने भी government organizations हैं या universities वगैरह हैं, वहाँ पे criteria है कि आपके पास जब तक NIS डिप्लोमा ना हो आप अपॉइंट नहीं हो सकते. ठीक है. So this is one part of it. Second part is if you want to go into the professionalism, अगर आप फिर NIS के साथ साथ अगर आप एक प्रोफेशनलिज्म में भी जाना चाहते हैं, उसके लिए it is mandatory for you all to have a coaching licenses. चाहे वो C लाइसेंस है, चाहे वो B लाइसेंस है, चाहे वो A लाइसेंस है. So वो लाइसेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है. जो ये गाइडलाइंस हैं, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सेट नहीं की है. दिस इज फ्रॉम AFC, which is
the governing body of Asia, that is Asian Football Confederation. So अगर आप प्रोफेशनल करियर में जाना चाहते हो, अगर आपके पास NIS है, that is very good because that will add more knowledge to your C license, B license, A license. आपके लिए वो लाइसेंस करना बहुत इजी रहेगा. मगर अगर आपके पास NIS नहीं है, मगर आप प्रोफेशनल लाइसेंस में जाना चाहते हैं, so then there is a path for you, C license, B license, A license, जहां से आप ये टीम्स के साथ काम वगैरह कर सकते हैं. So also, Mr. Sajid, so a similar thing will exist for every sports, right? जैसे मैं कहूँगा similar ABC license जो है, मतलब for the benefit of everyone, that will exist for every sports. जैसे टेनिस हो गया. Yes, I think there are so many, you can say, similar structures, right? Federations right now who are doing the licenses courses for their coaches. So since I am related to football, I can only talk to football. Yeah. Suji sir, I would like to add here, like many federations, they are having level 1, level 2, or like, you know, but in football we have license, we call. Right. Sir, here we will take one more question, sir. Like आपका एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ काम करने का, and then you had experience to coach, you know, senior women's team for many years with, you know, with the top players like Bam Bam Devi, Bala Devi. So sir, question I saw in the क्वेश्चन बॉक्स लाइक कि ग्रास रूट्स और जो सीनियर लेवल में जो कोचिंग में क्या क्या डिफरेंस है, बिकॉज क्या होता है कि स्कूल में छोटे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब वो 11, 10, 12, 11 में आते हैं उनका क्या होता है कि वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. तो क्या ऐसा डिफरेंस है, कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है और उनको क्या क्या गाइड करना है एज ए कोच और एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर? यस, इसलिए नरेंद्र मैंने पहले ही बोला कि हमें हर किसी स्टेज में डिफरेंट कैप्स पहननी पड़ती हैं, कि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं कि हमें थोड़ा अपने लेवल को थोड़ा नीचे लाना पड़ता है, जहां पे हम थोड़ा उनके साथ फ्रेंडली वगैरह उनके साथ काम वगैरह करते हैं, फ्रेंडली उनके साथ एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, फन टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर उनके लिए काम करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द यूथ डेवलपमेंट, जब फिर हम 12 इयर्स के ऊपर चले जाते हैं, देन इट बिकम्स मोर ऑफ, यू कैन से, उनकी जो वो दूसरे स्टेज में चले जाते हैं, तो वहां से वो फिर जाके वो कॉम्पिटिटिव स्टेज में आ जाते हैं. सो कॉम्पिटिटिव स्टेज में आपके पास फिर आपको दूसरी कैप लगानी पड़ती है, जहां पे आप थोड़ी डिमांडिंग बन जाते हैं उनके लिए. ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ आप थोड़ा फिर रिजल्ट ओरिएंटेड भी बन जाते हैं. एंड देन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लेवल, एक बार वो 19 इयर्स के हो गए या 18 उन्होंने क्रॉस कर लिया, then they become professional players. So एक बार जब वो professional players में आते हैं, then you as a coach need to wear another cap, जहां आपके पास खाली फिर डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसको, रिजल्ट ओरिएंटेड, दोनों को साथ साथ मिलाकर चलना पड़ता है, एंड मोर ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि वहां पे अगर आप रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, देन आपकी जो कोचिंग है वगैरह उस पर फिर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाता है. So when you are dealing with the professional players, yes, it is more of results, more of, you can say, winning the matches, winning the championships. When it comes to youth setup, it is both development as well as the result oriented. When it comes to the lower age group, it is more of fun and development. Yeah, sir. Thank you. Now, sir, I would like to request you, like in the past also, in present also, like like Vaiching Bhutia, you know, Sunil Chhetri, and even Anirudh Thapa. So they all are the products of, you know, like school games. Like they come up from school systems. So in many other game also, like many players, if we take example. So what message you would like to give? Because physical education teacher and the coaches, those who are dealing with the especially youth, especially with the grassroots, their role is very important. So what you would like to mention? Very important, Naren, because I have a you know big respect for the physical education teachers, because they are the one, जैसे मैंने आपको बोला, they are working with the players, you know, from such an early age, जहाँ पे हमारे लिए मुश्किल होता है उस स्टेज पे उन बच्चों के साथ काम करना. उनके लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं बच्चे स्कूल्स में, और उनके साथ वो तकरीबन 10 साल वो लड़के रहते हैं. अगर हम जो होता है प्री नर्सरी वगैरह, अगर हम उनको छोड़े, अगर हम फर्स्ट से लेकर 10th तक की बात करें, तो 10 साल वो लड़के उनके साथ हैं. अगर 10 साल में अगर अनिरुद्ध जैसे प्लेयर आए हैं, बाचुंगी इस सिस्टम से आकर आया है, सुनील एक सिस्टम से लेकर आया है, सो उनको लाने में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा उनको करियर को लेकर. सो यही
मैं हमेशा इन फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं. सो I request all the physical education teachers, not only football से related अपने आप को अपडेट कीजिए. जो भी उनके स्कूल में गेम्स होते हैं उनको लेकर वो अपने आप को अपडेट करते रहें, नॉलेज हासिल करते रहें. और वो नॉलेज व्हेन दे विल ट्राई टू डू दीज इवन अगर वो लाइसेंस भी करना चाहते हैं, डी लाइसेंस या ग्रास रूट लेवल जो हमारे हैं, सो डेफिनेटली उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली वो इम्प्रूव हो जाएगी. और मैंने वही बोला, जब हमारे स्कूल लेवल टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे नरेन, और वो टूर्नामेंट्स एक बारी हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होने लग गए, सो हमारे इंडिया के लिए प्रोडक्ट अच्छे आएंगे, हमारे स्कूल गेम्स फेडरेशन के लिए प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे. जब वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स ऊपर आना अच्छे से शुरू हो जाएंगे, सो हमारी नेशनल टीम्स भी अच्छे हो जाएंगी और हमारा जो यहाँ का जो क्लब कल्चर है वो भी अच्छे से डेवलप हो सकता है. Thank you so much. Now we have our principal sir with us, so I would like to request our principal sir, Dr. G. Kishore sir. Sir, please add your thoughts or please input something, please. Sir, please. Thank you, Dr. Naren, and it was an excellent session by Mr. Sajid Dar. I congratulate you because it is an area where every Indian, everyone is concerned of about the football standards, where we were at one time during the very early 90s, and then later how we have gone down. And now we are striving hard to come back to make a revival. Especially in women football, our standard has definitely has shown much improvement. And I think so at the various youth level, junior level, sub-junior also. I think it is all effort of coaches of like Mr. Sajid, which has made these changes just happening in the field of football. I think Football Federation also is doing quite a lot in this direction for development at grassroots. LNCP Trivandrum here, we had a lot of coach training program, coach education program, referee development programs, and grassroots programs held here. I think Mr. Sajid also was here sometime in between. Some point of time, we had many license courses organized here, both at various ABCD level. I think maybe so many coaches developed at the very stages have come here, and I would like to take 2 points which have been raised by Mr. Sajid, which is concerned with community coaches and physical education teachers, that about wearing different caps at different levels. A good football player can be brought up only when you are take care of him at the formative stage. So here the physical education teacher has to play a pivotal role. And because he has stated that here the physical education teacher is the one who can keep an eye on each and every student and keep watching him, and he is under his eyes for 1 to 10 or maybe whichever classes he is in the school. So if the physical education teacher is a little proactive and also interested in not only football, in any game, he can easily identify the talent based on by observing him based on his structure, physical, anthropological features, motor qualities, and he can definitely keep a watch, observe, and find out the talents hidden in. And of course, we have got talents which can be raised to higher levels of excellence in various sports, and football is also no exception. So this 1 to 10th year, of standards, while he get well in different subjects, he comes to know that student comes to know that he's good in physics, he's good in maths, so in English, like that, he will be good in maybe in football, he will be good in basketball, he will be good in athletics, one event. We can definitely, and the role of physical education teacher comes here to observe and find out which talent abounds in a child. And there is some basis. That is why Mr. Sajid has told that the physical education teacher has to keep himself updated on the sports sciences, the developments happening in various fields, the pre-requirements, motor qualities, the skills, and anthropological features required for various sports. And if he keeps himself updated and he is little proactive, he has mentioned the name of Vechun Sunil Chhetri also, where greatly supported by the physical education. So that is what is very, very important here. And
the football is something universal, and even like Omar, the great Indian saints like Swami Vivekananda has told that you can reach heaven by playing football. So that is what the football, the role of football is, and each physical education teacher, each coach need to realize this and wear the different caps at various levels. If you one need not to be only focused to the excellence, but we need to have coaches to look after the grassroots. We need to have the coaches to look after the intermediate. Football is a field where you have a structured program for various levels, and it is very active here. So one should make best use of it to get yourself acquainted with the coaching skills which are required to be, which is required for a different levels. And I think Mr. Sajid himself is an example for that. He has done his diploma, and that doesn't mean that he has not left the other, ignored the other coaching systems. And he has done the various levels of training under AAFF, and he is himself. That is the reason why he is so popular, accepted, and also successful. Thank you very much, Mr. Sajid. And I am sure that your session would have definitely benefited to the community coaches and physical education teachers all over the country. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah, thank you so much, sir. Now, let's come to the end of this session because, sir, Sajid sir, to be frank, जितने भी participants हैं, we are getting very good feedback. You can also see in the chat box and so really you made this session very realistic, very practical with your huge experience working with national teams, working with professional clubs, working with your state teams, and you were a top level player as well, and now you are coach educator as well. So that the combination of all that is there. So thank you so much for joining us, for sharing your valuable time and knowledge. Thank you so much, sir. And definitely we are going to take you in some other platform as well. Thank you so much on behalf of all those who are involved in the organization, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, and the entire team of Sai LNCP Trivandrum, and our course co-coordinator, Mr. Sujit Panigiri, sir, and the man, the force behind this successful show is our beloved principal, sir, Dr. G. Kishore, sir. So I would like to pass this thanks to you. Thank you so much, and thank you so much, sir, and thank you all the participants. Thank you everyone. Thank you everyone. Stay blessed. Thank you, sir. This is one of the best presentations, Sajid. Thank you, Sujit. Yeah, I think there's so much of positivity and energy. So thank you so much. I mean, personally, I also learned quite a few things. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity to be part of this program. And thanks to every participant who have been very kind enough, very patient enough for hearing me for, I think 1.5 hours. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Okay. Yeah, for everyone's information, so today at 5 o'clock, we have a session on Moroccan elite athletes. Dr. Fatima Fakir, she is also the first Moroccan to take part in Olympic Games, 1972. So today we have an Olympian actually talking to us. I think there's nothing better than this. I think it will be such an awesome session, and everyone should be there to listen to an Olympian talking to all of us. So सारे PE teachers जितने भी लोग हैं, community coaches हैं, please do join at 5 o'clock. लिंक वही है schoolfitness.kelloindia.gov.in/tot.aspx. और ये सारे participants को एक और information मैं देना चाहता हूँ कि आप हम जब सारे सेशंस खत्म हो जाएंगे 29th को, उसके बाद हम सबको ट्रेनिंग मटेरियल भी देंगे, सबको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल देंगे. दूसरा, मैं सबको विनती करूंगा कि आप इसके वीडियोस और पिक्चर्स को क्लिक करके नॉर्मल पब्लिक डोमेन में शेयर मत कीजिएगा. ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए, ये आप सारे लोगों के लिए, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नहीं है. तो इस चीज को रेस्पेक्ट कीजिएगा. We will be giving you the study material, so that is what I had actually shared some time back. So please just keep that in mind. Thank you so much. See you in the evening. Thank you so much. Thank you.